Okay, now part B, which I have not discussed in my videos. So this is new part for all of you, and there are certain new things to be understood. Combination of resistors, however, has been taught in detail, that is series and parallel. So apart from combination of resistors, we have to do the remaining topics in this part. So let's do this. मैं फिर से और एक बार सबको बोलना चाहता हूँ कि जिनको भी ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की तुम्हारे साथ, बेसिक फार्मूला भूल चुके हो या फिर मेरा वीडियो देखा ही नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए अब ये कवर अप करना, क्योंकि कल ही तुम्हारी एग्ज़ाम है। ठीक है, और मैंने ये जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब ये डिस्कशन से पहले जो मैंने वीडियोस भेजे थे, मैंने कल भी रिमाइंड किया था। आज सुबह अगर 10 बजे तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली थी, तो तुम्हें वो देख के रेडी रहना चाहिए था, बट बहुत लोगों ने इसको इग्नोर किया है। और मैंने 27 अक्टूबर को ये भेज दिया था, बट आई एम श्योर तुम लोग सब बिज़ी हो, तुम्हारी एग्ज़ाम चल रही है। बट नाउ आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू कवर अप, जिसको नहीं पता है ये चैप्टर के बारे में कुछ भी, इवन दो स्कूल में तो हो चुका है। ठीक है, शायद ये पार्ट से कुछ क्लैरिटी मिले। सो दिस इज लिटिल बिट यू कैन से continuation of the topics which you have learned in first part. इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ अ सेल। सो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, इसके अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं। हम लोग सिर्फ सेल के बारे में बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट द, you can say, the supply, AC supply which you get, alternating current supply which you get in your home, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड EMF वी विल टॉक अबाउट अ सेल। और यहां भी बहुत क्लियरली बताया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। सो एक सेल में दो कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, जिसको एक अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है, टेकन इन अ वेसल। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, it maintains a constant difference in potential between the two conductors called the electrodes or terminals by a chemical reaction to obtain a continuous flow of charge between them. Thus, a cell stores the chemical energy and it can be used as a source of current or electrons. The chemical energy changes into electrical energy when the cell is in use. तो सेल का काम ही ये है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच में वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन लेवल। जब तक लेवल में डिफरेंस होगा, तब तक दोनों टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो करता रहना चाहिए, उसके लिए जो कैपेसिटी चाहिए तुम्हारे सेल के पास, वो कैपेसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विदाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द कैपेसिटी ऑफ कीपिंग द difference in level constant or the potential difference constant between the two terminals of the electrode finishes off. Okay, so that's why the two terminals of the battery should be kept at a constant difference in their levels of electric potential। और ये काम करता है तुम्हारा सेल, जिसके पास होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे एक फिगर 8.11 में एक इलेक्ट्रिक सेल दिखाया है, जिसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, one of which is zinc and the other is copper, placed in an electrolyte, dilute sulfuric acid। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है,
it dissociates into positive ions H plus and negative ions SO4 2 minus inside the electrolyte. These ions they move towards the electrodes. The negative ions impart electrons to the zinc electrode and positive ions gain electron from copper electrodes. This chemical action creates a difference in concentration of electrons between the two electrodes of the cell. As a result, the zinc electrode acquires negative potential. So that's why it is known as negative electrode or cathode. And copper electrode acquires a positive potential and it is known as anode or positive electrode. That is, a potential difference called electromotive force or EMF is created between the two electrodes or terminals of the cell. When some electric component such as bulb is joined to the terminals of the cell, electrons flow in the external circuit from the zinc electrode to the copper electrode, or the current starts flowing in the external circuit from copper electrode to zinc electrode, negative to positive, and if a bulb is connected, it starts glowing. When no current is drawn from a cell, when the cell is in open circuit, the potential difference between the terminals of the cell is known as electromotive force. अब देखो ये सेल completely charged है, मतलब the electrons are ready to flow. अगर हम लोग ये दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत फ्लो होना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंस इन लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब तक ये डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे. जब तक डिफरेंस रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे तब तक बल्ब ग्लो करता रहेगा. सो ये जो तुम्हारा बैटरी या सेल का जो कंडीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू फ्लो व्हेन द terminals of the battery are connected in a circuit, this condition is known as open condition, open circuit. और ये ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका सिंबल है एप्सिलॉन. एप्सिलॉन ई जैसा दिखता है लेकिन इसको हम लोग, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन. The EMF of a cell is generally denoted by the symbol epsilon and its unit is volt, symbol is V. It can be measured by connecting a voltmeter of high resistance across a cell. When a cell is connected in a circuit containing various electrical components, a current flows in the external circuit because the EMF between the terminals provide energy for the charge to flow through components joined in the circuit. जैसे इस सेल को हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा, बिकॉज जो EMF है that will provide energy for the charges to flow through the components joined in the external circuit. So EMF of a cell की definition क्या है ये तुम्हें learn करनी है. The EMF of a cell is defined as the energy spent or the work done per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit of the cell, that is in the circuit outside the cell as well as in the electrolyte inside the cell. मतलब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बाहर, सर्किट के बाहर, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल और सर्किट के मतलब सेल के अंदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल अगर मुझे मूव करना है तो मुझे जो वर्क डन लगेगा या एनर्जी स्पेंट लगेगी उसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. Electromotive force is defined as the energy spent per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit, that is in the circuit outside the cell as well as in the electrolyte inside the cell. This is EMF. मैंने इससे पहले
फर्स्ट पार्ट में जो मैंने वीडियोस भेजे थे उसमें आई हैड टॉट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. So this potential difference is concerned only in the outside circuit. It has nothing to do with the cell or the battery. It is concerned only with the circuit outside the terminals. ठीक है. तो बाहर सर्किट में कोई भी करंट को फ्लो करवाने के लिए जितना वर्क डन लगता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. लेकिन सर्किट में और सेल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ता है. तो सेल के अंदर और बाहर की सर्किट में टोटल जो चार्जेस को मूव करने के लिए वर्क डन लगता है उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. If the work done in taking a test charge Q around the complete circuit inside the cell and outside in the circuit, then the EMF of the cell is E epsilon is equal to W by Q, where capital W is the work done, total work done. Factors affecting the EMF of a cell. EMF of a cell depends on the material of electrodes, the electrolyte used in the cell. However, it is independent of the shape of electrodes, distance between the electrodes and the amount of electrolyte. Thus, EMF of a cell is its characteristic property. It is different for different kinds of cells. For example, the EMF of voltaic cell is 1.08 volt, that of Lagrange cell is 1.5 volt, and of Daniell cell is again 1.08 volt. Terminal voltage. When current is drawn from cell, that is when cell is in closed circuit, the potential difference between the electrodes of the cell is known as terminal voltage, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. जो हम लोग V लेते थे, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं. So terminal voltage is potential difference between the electrodes when the cell is connected in the closed circuit. The terminal voltage of a cell is generally denoted by letter V. It is also expressed in the symbol in volt, that is symbol is capital V. The terminal voltage of a cell is defined as work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across terminals of a cell. Terminal voltage of a cell is defined as the work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminals of the cell. ठीक है, मैंने बहुत लेक्चर दिया, मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछना है अभी. Are all of you there or you sleeping? Yes, sir. Sir, there. Angelina? Angelina, have you been listening to me, whatever I am saying? Angelina, I can't hear you. Sir? Yeah, I can hear you now. Yes, sir. Yeah, so I want to ask you, Angelina, what is the difference between terminal voltage and EMF? So, in terminal Terminal. terminal voltage, Mhm. it's compared by the potential difference of the outside circuit. Very good, very good. Work done in moving a charge in the outside circuit. Yes, and what is EMF? In EMF inside circuit and outside circuit as well. Inside the cell, not inside In, circuit. Inside the cell and the outside circuit. The work done in moving a unit charge inside the cell and outside the circuit is EMF, and the work done in moving the charge only in the outside circuit is it's terminal terminal. voltage. So without
अच्छा, which is greater? Tell me, which is greater? Terminal voltage. No, EMF. Sorry. EMF is greater. Why? Because EMF is a greater work done. Without EMF, terminal voltage cannot exist. Terminal voltage exists only because of EMF. So for terminal voltage to exist, EMF must exist first. इसका मतलब है अगर सेल होगा या बैटरी होगा तो सेल या बैटरी विल प्रोवाइड टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, बिकॉज ड्यू टू सेल और बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस in the outside circuit will be created due to EMF, due to electromotive force of the cell. ठीक है, Yes. तो इसका जो फॉर्मूला है टर्मिनल वोल्टेज का, दैट इज W डैश बाई क्यू. EMF का क्या फॉर्मूला था? कैपिटल W बाई क्यू. इसका मतलब है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज आउटसाइड सर्किट एंड इनसाइड द सेल अपॉन द चार्ज. और V टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है W डैश बाई क्यू, दैट इज द वर्क डन इन मूविंग ओनली इन द आउटसाइड सर्किट अपॉन द चार्ज विच इज मूव्ड. और ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ड्रॉप. From the definitions of EMF and terminal voltage in a cell, it is clear that terminal voltage V of a cell is less than the EMF by the amount of energy spent in the flow of charge through the electrolyte inside the cell. देखो क्या हो रहा है कि कोई भी सर्किट में जब हम लोग चार्ज को मूव करवाते हैं तो चार्ज सिर्फ आउटसाइड सर्किट में फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी तो चार्ज मूव होता है. और EMF इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इनसाइड द सेल ऑल्सो इन आउटसाइड द सर्किट. सो कुछ एनर्जी है जो हमारे काम नहीं आती है. सम एनर्जी इज यूजलेस, some energy is wasted. What is that energy? That energy is the amount of energy required to move the charge within the cell. चार्ज सेल में मूव करेगा, वो हमारे काम थोड़ी आएगा. वो चार्ज चार्ज का मूवमेंट जो आउटसाइड सर्किट में होगा वही हमारे काम का है. इनसाइड द सेल क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें तो बल्ब बाहर लगाना है आउटसाइड सर्किट में. तो हमें इससे मतलब है कि यहाँ पे बाहर अगर मैंने बल्ब कनेक्ट किया तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ भी एनर्जी यूज हो रही है. सो एवरी सेल यूजेस सम पार्ट ऑफ इट्स अवेलेबल एनर्जी, दैट इज सम पार्ट ऑफ इट्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, in moving the charges inside the cell, which is useless for us. And that energy is known as voltage drop. This is the third quantity, voltage drop. So if W is the work done or energy spent in carrying a test charge Q through the electrolyte inside the cell, then the quantity small, sorry, just a moment. Yeah, then the quantity small w by q is called voltage drop in the cell, which is denoted by small v. So voltage drop is small v is equal to small w by q. So work done in carrying a unit charge through the electrolyte in the cell is called voltage drop in the cell. It is called so because this voltage is not available to us for the use. तो इसका एक रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे. वो रिलेशनशिप तुम्हें समझना जरूरी है. तो रिलेशनशिप ये है कि दिस इज कैपिटल W. कैपिटल W इज द वर्क डन बाय द cell to move the charge inside the cell as well as outside in the outside circuit. That is the EMF, which is equal to W dash, which is work done by moving the work done in moving the charge in the outside circuit only, plus small w, that is work done by
वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ओनली इनसाइड द सेल। ठीक है, तो EMF is equal to basically EMF is equal to टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये तीनों W को हमने Q से डिवाइड कर दिया है। तो कैपिटल W बाई Q EMF है, एप्सिलॉन W डैश बाई Q वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है, और स्मॉल w बाई Q है स्मॉल v विच इज टर्मिनल वोल्टेज, आई एम सॉरी वोल्टेज ड्रॉप। सो एक फॉर्मूला बनता है इससे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, EMF is equal to terminal voltage plus voltage drop, or terminal voltage is equal to EMF minus voltage drop. So when current is drawn from a cell, its terminal voltage V is less than EMF by an amount equal to the voltage drop inside the cell. जितना voltage drop ज़्यादा रहेगा उतना टर्मिनल वोल्टेज और EMF का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। तो हमारा जो कोई भी सेल जब डिज़ाइन होता है ना, कोई भी बैटरी या सेल जब डिज़ाइन करते हैं, तो हमारा मोटिव ये होता है कि उस बैटरी और सेल का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मिनिमम रखा जाए, क्योंकि उतनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उतनी एनर्जी बैटरी के अंदर ही जो चार्ज है उसको मूव करने में यूज़ हो रही है, हमारे काम नहीं आ रही है। इसलिए वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होना किसी भी अच्छे सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। So that was the major relationship which was explained in this part. Let's go ahead. There are two more topics. One more topic, I think, internal resistance. ये भी interesting है काफी. Okay. Thus, when the current is drawn from a cell, its terminal voltage V is less than its EMF by an amount equal to the voltage drop small v inside the cell. When a heavy current is drawn from the cell, a large number of charge carriers flow through the electrolyte, and hence more work is done. This results in more voltage drop and hence less terminal voltage. Thus, terminal voltage V of a cell depends on the amount of I or current drawn from it. मतलब जितना ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा और टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप इसलिए बढ़ेगा कि सेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र है दैट विल बी लेस, सो टर्मिनल वोल्टेज विल बी लेस। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ज़्यादा करंट ड्रॉ होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज कम रहता है। करंट कम रहेगा, ड्रॉ कम होगा करंट, तो टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम तब रहता है जब जीरो करंट ड्रॉ होता है। मतलब कौन से कंडीशन में बताता हूं तुम्हें, ये वाली कंडीशन में, फिगर नंबर 8.11 में देख रहे हो, ये यहां पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। सो यहां पे टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है, बट यहां पे अगर कुछ कनेक्ट कर दोगे तुम, फिर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे EMF और टर्मिनल वोल्टेज का डिस्टिंक्शन दिया है। EMF is measured by amount of work done in moving a unit positive charge in the complete circuit inside and outside the cell, and terminal voltage of a cell is measured by the amount of work done in moving a unit positive charge in the circuit outside the cell, only outside the cell. EMF is the characteristic of the cell and does not depend on the amount of current drawn from the cell. Terminal voltage depends on the amount of current drawn from the cell. More the current drawn from the cell, less is the terminal voltage. EMF is equal to the terminal voltage when cell is not in use, while greater than the terminal voltage when cell is in use. मतलब EMF is equal to terminal voltage. EMF और terminal voltage equal होते हैं when the cell is in open circuit. मतलब इस कंडीशन में EMF और टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम होंगे, बट जब सेल को यूज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा और EMF उतना ही रहेगा। EMF उतना ही रहेगा, सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज
टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से थोड़ा कम रहेगा, ये और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू यू कैन से इट बिकम्स greater when the cell is in use, and terminal voltage is equal to EMF of the cell when cell is not in use, while less than the EMF when cell is in use. तो ये था तुम्हारा 3 नए टॉपिक थे इसमें, दैट इज EMF, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, और उनका जो रिलेशनशिप है वो. अब एक छोटा सा टॉपिक है आगे, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. अब जैसे मैंने पहले ही पूछा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is faced by the current or the charges or the electrons when they flow in a conductor. अब ये जो चार्जेस है ये सिर्फ कंडक्टर में नहीं फ्लो कर रहा है, ये अंदर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके थ्रू भी तो फ्लो कर रहा है. मतलब ये जो सेल है या फिर बैटरी है, दैट ऑल्सो ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So that obstruction faced by the charge carriers inside the cell is known as internal resistance of the cell. So when a cell is in closed circuit, the current flows inside the cell through its electrolyte due to the flow of ions, both cations and anions, while outside the cell through the external circuit due to the flow of free electrons, it flows from anode to cathode in the external circuit, and from cathode to anode inside the cell through the electrolyte so as to maintain continuous flow. The resistance offered by the electrolyte inside the cell to the flow of current is known as internal resistance. It is the internal resistance of the cell due to which voltage drop on drawing current due to which its voltage drops on drawing current from it. It is denoted by the symbol small r. Its unit is ohm, just like capital R, external resistance. If current I is drawn from the cell, of which the internal resistance is R, the voltage drop is small v is equal to I into small r. Same Ohm's law ही यहाँ पे apply हो रहा है. So if you notice very carefully, मैंने तुम्हें बताया था V is equal to IR. यहाँ पे ये V क्या है, कौन बता सकता है ये V क्या है? तनीषा, ये कौन सा V है? Velocity. हैं? Sorry, voltage. Tanisha, Yes, sir. I was very close to a heart attack. Sorry, sir. It's okay. It's okay. Came out. It's okay. ये है टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की सर्किट से रिलेटेड है. हम लोग इसको वोल्टेज ही बोलते थे या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे फर्स्ट पार्ट में. ये I है करंट और ये R है रेजिस्टेंस, बट ये किसका रेजिस्टेंस है? वो सर्किट का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है. ठीक है, सेम चीज अगर तुम यहां पे देखोगे सेम चीज मिलेगा तुम्हें. ये जो V है स्मॉल v, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ड्रॉप, ये I तो करंट है अपना, और ये जो स्मॉल r है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल और द बैटरी. Behold, सीरीज ऑफ फॉर्मूला आने वाले तुम्हारे सामने, सीरीज ऑफ फॉर्मूले. For circuit analysis, the internal resistance of a cell is considered to be connected in series with the cell, as shown in the figure. तो ये है symbol of internal resistance. तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सेल का सिंबल बनाते हैं और उसके बाजू में ऐसी जिगजैग लाइन बनाते हैं. तुम सबको पता है कि जिगजैग लाइन का मतलब होता है रेजिस्टेंस. सिंबल्स पढ़े हैं हमने, क्लास 9th में भी पढ़े हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सेल के बाजू में जिगजैग लाइन बनाया और उसको एक ऐसे डॉटेड लाइन बॉक्स के साथ कवर कर दिया. इसका मतलब है ये है, दिस इज योर सेल एंड दिस इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल
रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सर्किट का नहीं है, ये सिर्फ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो एक सर्किट में उसको दिखाया है यहाँ पे, सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और यहाँ पे है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैपिटल आर। तो अगर ऐसा डायग्राम दिया है और फिर तुम्हें पूछ रहे हैं वो लोग कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नीथ 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 आर यू देयर? नीथ? Sir, he is not in the class. अश्मित? Yes, sir. इस केस में अपना टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये वाले केस में फिगर नंबर 8.14? Internal resistance plus external resistance. एग्जैक्टली, इनको हमेशा हम लोग ऐड कर देते हैं। जो हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का स्मॉल आर, उनको ऐड कर देते हैं। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल कितना हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल कितना हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। अच्छा, हमें पता है कि जो एप्सिलॉन है दैट इज ईएमएफ, दैट इज कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और small v which is your voltage drop, it is epsilon minus capital V. Epsilon is EMF minus terminal voltage. तो अगर हम लोग एप्सिलॉन और V की वैल्यू हम लोग डालें तो हमें एक फॉर्मूला मिल सकता है। यहाँ पे वो लोग ने क्या किया है, वो लोगों ने स्मॉल आर का एक फॉर्मूला निकाला है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज V अपॉन आई। स्मॉल v की जगह एप्सिलॉन माइनस v लिखा है, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, और I की जगह पे वो लोग ने डाला है V बाय आर, और फिर कैपिटल V को वो लोग ने कॉमन निकाल दिया है और सिंप्लीफाई किया है इसको, एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। मतलब दिस इज अ रिलेशनशिप, यू कैन सी अ ग्रेटर रिलेशनशिप बिटवीन internal resistance, external resistance, EMF and terminal voltage। अगर तुम्हें कोई भी एक चीज़ मिसिंग है और ढूंढनी है तो तुम ढूंढ सकते हो। वैसे फॉर्मूला तुम खुद भी बना सकते हो, तुम्हें जो सिचुएशन दी है न्यूमेरिकल में, लेकिन लेट मी टेल यू इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन फॉर न्यूमेरिकल्स दिस पार्ट, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी है, दैट इज ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चारों के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। लास्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस कम होना चाहिए। नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेस आयोनिक द इलेक्ट्रोलाइट और हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज़्यादा आयोनिक होगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मतलब वी वांट द इलेक्ट्रोलाइट टू बी मोर आयोनिक। मोर आयोनिक मतलब ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम रख पाएंगे। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हायर द टेम्परेचर लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये थोड़ा अजीब है बट इट इज ट्रू। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये 4 फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी।
तो इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा एंड आई विल डायरेक्टली गो टू द न्यूमेरिकल्स, दैट इज सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सेकेंड पार्ट के। इसी में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये पार्ट के टॉपिक्स का। ओके लेट, ये तो हो गया लोड। A high resistance voltmeter measures the potential difference across a battery to be 9 volt. Can anybody tell me what is this 9 volt? Vaibhav, can you tell me? Ashmit, can you tell me what is 9 volt? Shreya, can you tell me what is 9 volt? Sir, EMF. Very good. Yes, it is EMF. So EMF is 9 volt. A high resistance voltmeter measures the potential difference across a battery to be 9 volt. On connecting a 24 ohm resistor across the terminals of the battery, see now some external circuit has been connected, and the resistance of this external circuit, or the resistance of the resistor connected in the external circuit, is 24 ohms. So this is the external resistance, 24 ohms. On connecting 24 ohm resistor across the terminals of a battery, the voltmeter reads 7.2 volts. Voltmeter reads 7.2 volts. This is voltmeter reading. Shreya, can you tell me what is the voltmeter reading? 7.2 volts. No, it is terminal voltage. I know it is 7.2 volts, but we call it terminal voltage. Right? Yes, sir. Yeah, so the terminal voltage is 7.2 volt. EMF was 9 volt. Now as you can see, EMF is greater than the terminal voltage. EMF हमेशा ज़्यादा ही होता है terminal voltage से. Calculate the internal resistance of the battery. हमें internal resistance ढूंढना है. ठीक है? चलो, कौन मुझे हेल्प करेगा इसमें? वैभव? प्रियम? अश्मित? Yes, sir. अश्मित, मेरे को ज़रा हेल्प करो इसमें. टर्मिनल वोल्टेज है मेरे पास, ईएमएफ है, रेजिस्टेंस भी है मेरे पास. हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो कैसे करेंगे? सर इसका EMF डिवाइड बाय टर्मिनल वोल्टेज -1 into रेजिस्टेंस. Okay, so you are suggesting that we use that formula which we saw. Yes, sir. अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, जो बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा, कॉमन प्रॉब्लम होगा, तो मैं कैसे करूँगा इसको? कोई और तरीका है? मैं तुम्हें बताता हूँ.
V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, राइट। सो हमारे पास I नहीं है, I इज द करंट, I इज इक्वल टू V बाय R। ये उनके लिए कर रहा हूं मैं जो लोग फॉर्मूला नहीं याद रख पाता है, जो लोग को रिलेशनशिप तो याद है बट फॉर्मूला याद नहीं है। सो यू कैन बिल्ड योर ओन फॉर्मूला, ठीक है। V बाय R 7.2 अपॉन 24, okay, 24 ones are 24 and 24 0.3s are 7.2, so current is 0.3 ampere। करंट आ गया। अब एक बात याद रखना कि करंट जितना बाहर फ्लो हो रहा है सर्किट में उतना ही बैटरी के अंदर फ्लो होता है, करंट सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ढूंढेंगे वोल्टेज ड्रॉप, स्मॉल वी कितना होगा, ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ईएमएफ है 9 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज है 7.2 वोल्ट, 9 माइनस 7.2 कितना होता है 1.8 वोल्ट्स। ये आ गया तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप। अब फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। मेरा V और R दोनों एक जैसा दिख रहा है, लेट मी रीराइट इट, ठीक है, ऐसे लिखता हूं मैं, और ये R को थोड़ा सा स्मॉल v इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, ये भी ओम्स लॉ है। सी दिस इज ऑल्सो ओम्स लॉ and this is also Ohm's law, but this is for external circuit, this is for the cell internal resistance. Small v is 1.8, I is 0.3, multiplied by small r can be calculated, so r is equal to 1.8 upon 0.3, which is 6 ohms। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हो गया 6 ohms। अब जो अश्मित बोल रहा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आता। किसी को अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग स्टेप वाइज कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला बेसिक लॉजिक लगा के कर सकते हैं। Six ohm is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सबको वॉलंटियर तो करना ही पड़ेगा, तुम लोग बैठे बैठे मज़ा नहीं ले सकते वहाँ पे। वैभव, कैन यू हियर मी? मैं बहुत बार तुम्हारा नाम बोला है, तुम मुझे आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है। Yes, sir, I'm here. हाँ, फाइनली। चलो वैभव, हेल्प करो मुझे फटाफट इसमें। A battery of voltage 12 volts sends current of 400 milliampere to an appliance। एक बैटरी है, उसका वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट्स, कितना करंट वो भेज रहा है अप्लायंस को 400 मिली एम्पियर। करंट इज इक्वल टू 400 मिली एम्पियर। बेटा ये मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे करेंगे, करना ही पड़ेगा, कैसे करेंगे? Sir, divide by 1000. ओके, सो So it कैन will be 0.4 ampere. very good, divide by 1000 which is 0.4 ampere। After a long continuous use the current drops to 320 milliampere। तो ये तो इनिशियल करंट है, ठीक है। लॉन्ग कंटिन्यूस यूज के बाद करंट कम हो जाता है। तुम सबको पता है कि जब हम लोग कोई टॉर्च या ऐसा कोई डिवाइस यूज करते हैं, उसमें बहुत टाइम तक वो टॉर्च को यूज करने के बाद उसका जो बल्ब है वो डिम हो जाता है। हैव यू ऑल ऑब्जर्व्ड दैट? Yes, sir. तो बल्ब डिम क्यों होता है? बिकॉज टॉर्च को जब हम लोग लॉन्ग कंटिन्यूस टाइम तक यूज करते हैं तो उसका जो बैटरी है उसका वोल्टेज कम हो जाता है।
उसका वोल्टेज इसलिए कम होता है बिकॉज वी आर यूजिंग इट अ लॉट। सो उनके दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है, तो उसकी वर्क डन करने की कैपेसिटी कम हो रही है। इसका मतलब है कि करंट भी कम फ्लो करेगा क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे अब, इसलिए करंट कम फ्लो करता है और वो बैटरी का जो बल्ब है, टॉर्च का जो बल्ब है वो डिम हो जाता है। ठीक है। सो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई भी अप्लायंस को हम लोग यूज करेंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ करंट। ठीक है। सो I1 I2 से मैंने ये चीज बताई है। अच्छा, करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पियर, और एक चीज तो मैंने बताई नहीं, एंड द अप्लायंस डज नॉट ऑपरेट, अप्लायंस चलना ही बंद कर देता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। नंबर 1, पहली बात तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है अप्लायंस का। चलो वैभव, कैन यू टेल मी? Yes, sir. कैसे ढूंढेंगे So we will रेजिस्टेंस? do it by Ohm's law. V is equal to IR. ओके, सो R Then इज इक्वल टू V बाय I। V क्या है? 12 और I 0.4, करेक्ट? yes, sir. 4 0.1 जा, 4 3 जा, सो दिस विल बी 30 ohms। ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द अप्लायंस स्टॉप्स ऑपरेटिंग। टर्मिनल वोल्टेज था 12 वोल्ट, इस पे ये अप्लायंस चल रहा था। अब टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? अब देखो, जब वो बंद हो जाता है, अप्लायंस डज नॉट ऑपरेट लिखा है, तब उसका करंट 320 मिली एम्पियर है, मतलब ये वाला। तो कैन यू टेल मी कि उसका वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज, जब वो अप्लायंस बंद हो जाएगा? कैसे ढूंढेंगे इसको? So can we use unitary method? No, never do that. You can use in some of the cases, but you are not allowed to. So here what is required from their side is they want to understand your concept. So here the concept you are going to use is कि बैटरी वीक हो गया, तुमने उसको लॉन्ग कंटिन्यूस यूज से बैटरी को वीक कर दिया, लेकिन उसके अप्लायंस के रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कि तुम उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं कनेक्ट कर रहे हो, या वीक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, या AC वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हो, या DC वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लायंस का रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस 30 ohms है, राइट? यहां पे मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 30 ohms, और मेरे पास करंट है, तो आई कैन फाइंड V, that is terminal voltage, which is equal to IR, which is 0.32 times 30, which is 3.2 times 3, which is 9.6 volts. कितना है वोल्टेज? 9.6 volts। ये है टर्मिनल वोल्टेज। तो वैभव, यहाँ पे देख रहे हो तुम क्या हुआ? पहले वोल्टेज कितना था? पहले वोल्टेज कितना था 0.4 ampere. भाई? वोल्टेज 12 volt. 12 वोल्ट, और अब वोल्टेज कितना हो गया? 9.6. हाँ, वोल्टेज कम हो गया ना, इसलिए अप्लायंस बंद हो गया। वोल्टेज क्यों कम हुआ? क्योंकि बैटरी वीक हो गया। अब तुम्हें बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा। तुम्हारे पास रिमोट तो हो गए घर पे, टीवी का रिमोट या हर बहुत सारी चीज़ हो गई, AC का रिमोट होता है, वो कभी कभी काम नहीं करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये बैटरी ख़त्म हो गया, मतलब क्या है? उसका वोल्टेज कम हो गया है। अब वो तुम्हारे अप्लायंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसको जितना करंट चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। करंट फिर भी दे रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ।
दैट्स वाई इट स्टॉप्स वर्किंग। फिर तुम रिप्लेस करते हो, नई बैटरी डालते हो, फिर शुरू हो जाता है वो। ठीक है। So terminal voltage of the battery when the appliance stops operating is 9.6 volts. Find the voltage drop. Voltage drop क्या होता है? Voltage drop होता है, voltage drop is equal to EMF minus terminal voltage. अब तुम बोलोगे सर कौन सा टर्मिनल वोल्टेज लेना है, तो मेरे हिसाब से जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो यही होगा, 12 वोल्ट। EMF क्या होगा? यार मुझे तो लगता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। चलो कौन मुझे थोड़ा हेल्प कर सकता है इसमें? Sir, can we take EMF as 12? That's what I was thinking, Shreya. But then what will you take as terminal voltage? 9.6 volt? 9.6. 6. Okay, Yes. okay. So let's try what all of you have in mind. EMF 12 volts, terminal voltage as 9.6 volts. ठीक है? So that will give us the voltage drop. Can anybody tell me the difference? 2.4. 2.4 volts. 2.4. Volts. 2.4 volts is the voltage drop. And the internal resistance of the battery, अब तो easy है. So small v is equal to I into small r. So small v upon r is equal to I. So I is equal to small v. Small v is 2.4, and the current is in this case 0.32. That is 240 upon 32. What we have to find? Internal resistance ढूंढना है ना। क्या कर रहा हूँ मैं अभी? R is equal to V by I. मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा है, बाकी सब सही है। So R is equal to V by I. V is 2.4. V is 2.4 and I is 0.32. 240 by 32. Can anybody calculate and tell me? Seven point five. You are correct. 7.5. 7.5. नीत का भी आवाज आया यार। 7.5 एम्पियर। Hey, ohm. So, Yes, ohm. 7.5 ohm. चलो चेक करते हैं। तो हमारे आंसर्स जो है, दैट इज रेजिस्टेंस है सबसे पहला, दैट इज 30 ओम। उसके बाद है टर्मिनल वोल्टेज 9.6, voltage drop 2.4 and internal resistance 7.5. 30, 9.6, 2.4, 7.5. 30, 9.6, 2.4, 7.5 बिल्कुल सही है। Yes. Angelina, I need your help. yes, sir. A cell supplies a current of 2 ampere when it is connected to 5 ohm resistance. Current 2 ampere when it is connected to 5 ohm resistance 5 ohm, and supplies a current of 1.2 ampere if it is connected to a resistance of 9 ohm.
Find the EMF and internal resistance of the cell. Can you tell me how we'll do it? So we can use the formula of Yes. EMF of cell. Yes, can you tell me the formula? M is equals to I into R plus resistance plus it in small r. Wait. Let me confirm the formula here. So we have been given IR, capital I, capital R, epsilon and small r. M is equal to I into total resistance. I think this formula we can use, right? Yes, sir. M is equals to M nahi, epsilon. epsilon is equals to I, capital R plus I small r. into total resistance. R Yes. into R plus. Okay. So if we put the values, we'll get two equations. First is epsilon is equal to 2 bracket 5 plus small r, Small r. which is 10 plus 2r, or epsilon minus 2r is equal to 10, whichever you want to take. And the second one is epsilon is equal to 1.2 times 9 plus small r. So epsilon is equal to 1.2 times 9, which is 10.8 plus 1.2 r, or epsilon minus 1.2 r is equal to 10.8. So this is equation number 1. Equation number 2, linear equation in two variables, simultaneous linear equations. If you solve them, you will get the value of EMF and internal resistance. Please solve it now. Solve this now, please, everyone. तुम लोग डायरेक्ट ये EMF की जो दो वैल्यूज़ है ना, उसको इक्वेट भी कर सकते हो, और स्मॉल r मिल जाएगा. स्मॉल r की वैल्यू ये वाले इक्वेशन या ये वाले इक्वेशन में डाल दोगे तो एप्सिलॉन मिल जाएगा. चलो क्विकली. Sir, R is 1. Small r is 1. Yes, sir. And Epsilon. EMF is 12 volt. Okay, let's check. Small r is 1 and EMF is 12 volt. Yeah, you are correct.